Okay. Okay, so last class we have started our BRD, right? Hansen and Nancy and Venkat. Yes, sir. How is your hand, Nancy? अभी हैंड कैसे है आपको? बोलो सर, रोज एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, आपको अच्छा लगता सर हाथ अभी ठीक है। है? ठीक है ना? ठीक है. Good. Okay, so I think we have covered our business driver, right? Business driver तक हमने किया है ना कवर, वेंकट? वेंकट, Nancy, we have covered till Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. business driver, right? Now we need to start with the project scope, correct? ये भी कर लिया हमने. नहीं, ये नहीं किया है. ठीक है. So today we are going to continue with our understanding of BRD, guys. So in BRD we are having another content, a very important content is the project scope. Okay, have I told you about scope creep by any chance? No, right? Nancy, Venkat? No, नहीं sir. नहीं Evening, sir. Good evening. Good evening, Subhash. चलिए. So we are starting now. So our next content is the project scope. Okay. Project scope will describe what work is in scope for the project and especially what is the out of scope beyond the current budget, resources, and timeline as approved by the project stakeholder. This is designed to prevent the scope creep of additional feature and functional not originated participated या not originally participated. सबसे पहले गाइस प्रोजेक्ट स्कोप में वी आर गोइंग टू डिफाइन कि हम क्या क्या करने वाले हैं. What all functionality we are going to do, that we are going to define in the project scope, and what all we will not do, और हम क्या क्या नहीं करेंगे, that we are going to define as a part of our project scope. It will help us to prevent the scope creep. Okay, now what is scope creep? Let me tell you guys. Scope creep क्या होता है, ये important question है. मुझे एक मिनट दीजिए बस. Let me. Okay, so let me ask Venkat to read this scope creep. This only, only रोड this के one. ऊपर है. हाँ हाँ, रोड के ऊपर हुआ. घर पे नहीं है, थोड़ा बाहर. अच्छा अच्छा, no problem Venkat, no problem. Yes, no problem. Nancy, please read this because Yes, Subhas sir. is also outside. So Nancy, please read. Scope creep refers to the uncontrolled expansion of a project scope without corresponding adjustment to time, cost, and resources. It often occurs when new features or requirements are added to a project after it has already begun, leading to delays, increased cost, and potential project failure. Here are some key aspects of scope creep in software development. Okay, thank you Causes of sir. scope. नहीं बस Okay. इतना ही पढ़ना, ये काम का है अपने में. सबसे पहले स्कोप क्रीप क्या होती है? वी डिसाइडेड समथिंग, जो कि मोस्टली आपके वाटरफॉल में होता है कि वी डिसाइडेड समथिंग कि दिस वर्क वी विल डू एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. एग्जांपल, अवर एक्सिस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, वी डिसाइडेड वी आर गोइंग टू डू 16 रिक्वायरमेंट. Then we decided, okay, this 16 requirement we are going to do in 1 year. Okay, in 1 year we will do 16 requirements, and then we also decided for doing this activity we will require 2 developer, 1 business analyst, 1 tester. Okay. And also we decided this is the budget allocated for this project called 10 CR. Now, what we decided in the initial, we are going to deliver 16 requirement in 1 year with 4 resources and the budget of 10 CR. This is decided as a part of planning. But
आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद अब 3-4 महीने हो गए, आपका क्लाइंट इज कमिंग टू यू एंड इज सेइंग नो आई वांट टू हैव 2 more requirement. When he is coming with the additional change, he is expanding the scope of work, but what he doesn't want is do not increase the time, do not increase the resources, do not increase the budget. This situation is called the scope creep. So scope creep refer to the uncontrolled, इसका जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, एक्सपांशन ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट के काम में बढ़ाना विदाउट करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट टू द टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। मतलब he want to extend, he want to add some more requirement, he want to extend the scope of project, he want to expand the scope of project, but what he doesn't want is he does not want to adjust the time, cost and the resources. ये कब होता है? It often occurs when the new feature or the requirement are added to the project after it has already begun. क्या क्या नुकसान करता है आपका ये? It lead to the delay, increase the cost, potential project failure as well. Now here are some key aspect of the scope creep of the enhancer. तो ये सब ठीक है, ये आपको मैं भेज दूंगा, बट अगर ये डेफिनेशन में अगर आप याद कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो व्हाट इज स्कोप क्रीप? स्कोप क्रीप इज अनवांटेड एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट without increasing the time, resource, and your budget. It mostly happen when you have already started the project and client is coming to you by asking add some more features, add some more requirement, but he does not want to increase the timing and all and your budget. It often if he does not follow the proper change management, okay, then it may cause failure of our project as well. Scope creep, Subhas, understood? Venkat, scope creep understood? Yes, yes, sir. Nancy, scope creep understood? अभी Yes, sir. एक्चुअली अभी वाटरफॉल में हम लोग वो चेंज रिक्वेस्ट के बारे में बात की। अभी ये स्कोप याद करके डेफिनेशन चेंज हो जाएगा क्या? सेम ही रहेगा? सेम ही रहेगा। वी कैन ऐड वन मोर पॉइंट कि इन वाटरफॉल देयर इज आल्सो चांसेस ऑफ हैविंग द स्कोप क्रीप। So this is another disadvantage of scope waterfall we can have. Okay. अब इस वाले स्कोप क्रीप को अवॉइड करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है आपके पास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन to avoid a scope creep is your BRD, and in BRD you are having the section called project scope. Okay, so this designed to prevent scope creep of additional feature of the function not originally anticipated. Project scope में you are going to define, guys, this project scope is one of your content of BRD. In the project scope you are going to define which all functionality you will be able to do and which all functionality you will not able to do. Project scope का जो अंदर content होता है that is your in scope functionality. In scope functionality you are going to define which all functionality you want to develop as a part of this project. आप कौन कौन सी functionality देने वाले हो? This will come as a part of in project. In scope functionality. Out of scope में क्या होगा? Which all functionality you will not give as a part of your project. आप क्या क्या नहीं दोगे in your project that will come as a part of out of scope functionality. In scope functionality में what all things you can give as a part of this project that will come as a part of in scope functionality. Let me tell you with the example. हम गवर्नमेंट अकाउंट ओपनिंग के एग्जांपल लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। Now, in the 1 minute account opening, before I start, I have forwarded you guys. सुभाष आपने कॉल नहीं किया, मैं बात हुई है कि सुभाष हुई थी शायद बात, राइट? कि नहीं किया कॉल आपने? सुभाष कैसे? सुभाष ट्रैवलिंग कर रहे हैं। नहीं सर, मैं
कल कॉल नहीं कर पाया था सर, थोड़ा ऑफिस में काम रहा था दोपहर में, उस समय थोड़ा सा ज्यादा ही, फिर शाम को कर नहीं पाया, लेट हो गया था। मैं कॉल कीजिए। संडे को करूँ क्या सर आपको? हाँ, संडे कॉल कीजिए। संडे को फ्री होकर कॉल करते हैं तुमसे। ठीक है। नैन्सी, आपको जो प्रोजेक्ट असाइन किया था वो देखा आपने, पढ़ा आपने? यस सर, मैंने उसको गो थ्रू किया है, डीप डाइव तो नहीं कर पाई, बट गो थ्रू आपने किया जितना, है ना? हाँ आपने जो भेजा है उसको मैंने देखा। हाँ, अब गो थ्रू करके तो डीप डाइव करना स्टार्ट करो उसमें। अब तो 3-4 बार पढ़ोगी ना, फिर इमेजिन करो यस कि सर। कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था, कैसा बनाया था। फिर जो कुछ क्वेश्चंस अगर आपसे आते तो मेरे से पूछो आप। यस सर। वेंकट, हैव यू ओपन द फाइल? फोन तो कर लिया है, बस थोड़ा दिमाग से ऊपर चला जा समझ में नहीं ओके, हाँ, जस्ट हैव यू नहीं रीड ट्वाइस और थ्राइस? एक्चुअली आज थोड़ा देखा था इसमें क्या क्या समरी है। नहीं नहीं, थोड़ा सा आराम से बैठ के ना 2-3 बार रीड करो उसको पहले। ठीक है, हम्म। उसके बाद लेट्स कनेक्ट विथ मी टू चेक क्या है क्या नहीं, बट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा उसको वेंकट। है ना? हाँ वो इतना इजी नहीं है, समझ में आ जाएगा आसानी से। एंड नैन्सी, हैव यू स्टार्टेड गोइंग थ्रू दिस वन पीडीएफ, लार्ज पीडीएफ? पूरा स्टार्ट किया पढ़ना उसको? अ, जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है सर? हाँ, नहीं सर, वो पूरा नहीं पढ़ पाई हूँ मैं अभी, मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने देख लिया था उसको भी। एक एक 2-2 पेज पढ़ो उसका। हाँ सर, मैं उसको स्टार्ट करूंगी, एक्चुअली अभी टाइम भी मुझे थोड़ा नहीं मिल पाया, पर मैं कर लूंगी। ठीक है वेंकट, हैव यू ओपन दैट फाइल? हाँ, हम तो ओपन कर लिया था। नहीं नहीं, हम वो वाली फाइल, हाँ, इमार्टिकस वाली। कौन सा? एक पीडीएफ भेजा था ना, इमार्टिकस का पीडीएफ जो भेजा था। हाँ, वही उसके ऊपर है, वही तो देख रहा था। अच्छा, तो अपने वो एफआरडी खोली क्या? नहीं नहीं, वो नहीं खोला था एक्चुअली। फर्स्ट आपने वो 133 पेजेस का वो एक बुक भेजा था ना, नहीं नहीं, उसके वही। पहले एफआरडी भेजी है ना? हाँ, एक पेज है वो नहीं देखा। नहीं देखो ना, वही तो मेन है, दैट इज योर प्रोजेक्ट ना वेंकट। ओके। प्लीज गो थ्रू द प्रोजेक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। है ना? ओके। चलिए, तो आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू प्रोजेक्ट स्कोप एंड सुभाष, आप भी ना मेरे से कनेक्ट करो तो मैं आपको प्रोजेक्ट असाइन करूंगा। प्रोजेक्ट असाइन करना है मुझे आपको सुभाष। यस सर, यस सर। ठीक है। नाउ इन प्रोजेक्ट स्कोप गाइस, वी आर गोइंग टू हैव इन स्कोप फंक्शनैलिटी एंड आउट ऑफ स्कोप फंक्शनैलिटी। इन स्कोप फंक्शनैलिटी में क्या लिखा है नैन्सी जी, पढ़िए। एंड आउट ऑफ स्कोप में भी आप पढ़िए क्या लिखा है। यस सर। In scope functionality, ability to apply for account opening at any time 24/7 through the bank's website and mobile channels. Ability to choose the branch at which the customer wishes to domicile his or her account in. Ability to select the account class the customer wishes to open from a predefined list of values, that is, current saving, salary, etc. Ability to apply for a debit card and link it to the newly opened account. Reporting on new, failed, and successful online account openings by time period and branch. Out of scope functionality, ability to apply online for a loan, credit card. Ability to apply online for a prepaid card. Ability to apply for a joint account opening. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फंक्शनैलिटी में क्या क्या बोल रहा हूँ मैं कि यू कैन ओपन योर अकाउंट 24/7, कहीं से भी कर लो। एबिलिटी टू चूज द ब्रांच जहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करना है। एबिलिटी टू सेलेक्ट द अकाउंट क्लास, कि किस क्लास में आपको अकाउंट ओपन वांट टू ओपन, विच काइंड ऑफ अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट। एबिलिटी टू अप्लाई फॉर द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सॉरी नॉट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप कर सकते हो अप्लाई। एंड देन रिपोर्ट कर सकते हो, यू कैन रिपोर्ट योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली ओपन, failed, whatever the situation, you can 100% report. So everything that you can do as a part of this project, that will come as a part of in scope functionality. जो भी आप कर सकते हो वो आपका कहाँ पे आता है, इन स्कोप फंक्शनैलिटी में आता है। आउट ऑफ स्कोप क्या होता है, एबिलिटी टू अप्लाई फॉर द लोन और द क्रेडिट कार्ड नहीं कर सकते। एबिलिटी टू अप्लाई फॉर द प्रीपेड कार्ड, यू कैन अप्लाई फॉर द प्रीपेड कार्ड।
Ability to apply for the joint account opening you cannot do. What is prepaid card, Venkat? Venkat? Okay, Nancy, what is prepaid card? प्रीपेड कार्ड सर जैसे अपना गिफ्ट कार्ड होते हैं और जिसमें ऑलरेडी पेड होता है एंड उसको आप लेटर ऑन यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिल्स आते हैं. Correct. So gift card is one of the example of your prepaid card, right? Second example of Yes. prepaid card is your travel card. Correct? जो Yes, पहले sir. से आप पैसे डाल के जाते हो with इसमें to do the Yes, expenses and sir. all, right? So this is your Yes, sir. out of scope functionality जो आप नहीं कर सकते हो. तो इन scope functionality में whatever functionality we will be able to do वो आपका in scope में आता है, out of scope में आता है, क्या क्या नहीं कर सकते हो. This is your in scope and out of scope functionality in the BRD. The next is the system perspective. In the system perspective, you are having assumptions, constraint, and risk. क्या क्या डालते हो इन सब में? In the system perspective, you are going to describe the complete description of the factor that could prevent successfully implementation or the accelerate the project, particularly factor related to the legal, regulatory compliance, existing technical or operational limitations of the environment budget and all. मतलब जो भी आपके चीज, जो भी आपके you can say factor that can make your project unsuccessful. ठीक है? जो भी आपकी अड़चने आ सकते हैं in your project that you are going to write as a part of your system perspective. Now let's try to have understanding on the मतलब यहाँ पे कुछ चीजें आप देखोगे सिस्टम पर्सपेक्टिव, कंस्ट्रेंट, रिस्क, असम्पशन, ये थोड़ा बहुत आपको एक जैसे ही दिखेंगे. ओके, तो जस्ट नीड टू मेक श्योर कि हाँ एक एक पॉइंट अगर आप इसका इसमें आपका डीप डाइव क्वेश्चन नहीं होगा बट हाँ आपसे पूछा जाएगा कंटेंट ऑफ बीआरटी. तो कंटेंट ऑफ बीआरटी यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ डिटेल एज वेल. बट कुछ चीजें कॉमन दिखेंगी आपको इन इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स. सबसे पहले देखिए आप सिस्टम पर्सपेक्टिव. सिस्टम पर्सपेक्टिव में क्या क्या चैलेंजेस मैंने आपको बोला था वो आप लिखते हो. आपके पास प्रोजेक्ट आया एंड आफ्टर सीइंग द प्रोजेक्ट जो भी आपके चैलेंजेस है, जो भी आपके फैक्टर रहते हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट डिलीवरी को हैम्पर कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू कम एज अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम पर्सपेक्टिव. सबसे पहला लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग. अगर आप लिमिटेड रिसोर्स दोगे, जितना नहीं है वो नहीं होगा, या लिमिटेड रिसोर्स विल हैव द will create some kind of challenge in the project. Other prioritized project is still pending in the pipeline. हम ये बोलने कुछ कर रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि पाइपलाइन में रखे हुए हैं, ये आएगा तो हमें दिक्कत हो सकती है. Regulatory and compliance issue may arise against allowing the account opening for the customer residing outside Jordan. मतलब हमने कंट्री के बाहर के लोग को भी अलाउ कर रहे हैं टू ओपन द अकाउंट. अगर हम लोग कंप्लेंट्स और कुछ इश्यूज आ भी सकते हैं, रेगुलेटरी कंप्लेंट्स अगर हमने उसको फॉलो नहीं किया, देयर कैन बी सम इशू कैन कम एज अ पार्ट ऑफ सिस्टम पर्सपेक्टिव. ठीक है, सिस्टम पर्सपेक्टिव में क्या आता है वेंकट एंड सुभाष एंड नैंसी इज कि आपके क्या चैलेंजेस आते हैं. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट ऑफ बीआरडी इज योर assumption. ओके, assumption में आता है आपका कि what all things you are assuming. आप क्या क्या अज्यूम करके चल रहे हो. assumption आपके टाइमलाइन के बेसिस पे आता है और रिसोर्सेज के बेसिस पे आता है. अगर कोई सिस्टम डिपेंडेंसी है तो वहां पे भी आपका assumption आप लिखते हो. जैसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म टू बी प्रिंटेड फ्रॉम द सिविल सिस्टम. ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि जब आपका 1 मिनट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरा जाएगा तो वहां पे कोई पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं होगा. यू कैन नॉट डाउनलोड द पीडीएफ. You just do the submit, and after submit, one reference number will be generated. That reference number will be reflected to the banking के सिविल सिस्टम में. तो आपका अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म है वो सिविल सिस्टम से ही प्रोड्यूस होगा. दिस इज माय assumption that we are assuming. Requirement documentation and approval to be completed by the end of May 2026. आप ये बोलते हो कि जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है that is going to complete in this date. प्रोजेक्ट है आपका 1 साल का, अगर मई तक आपका एफआरडी साइन ऑफ नहीं हुआ या बीआरडी साइन ऑफ नहीं हुआ, देन यू विल नॉट एबल टू डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. सो व्हाट इज योर assumption, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन इज कि मेरा साइन ऑफ
या डॉक्यूमेंट क्लोजर मई एंड तक हो जाना चाहिए. Fully dedicated resource will be provided from the business integration department to participate proactively in the project at all phases. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि you are providing me the, yeah, we are working on the case where shared resources allocated. मतलब आप काम तो कर रहे हो, बट आपके शेयर्ड रिसोर्सेज है. एक एक पर्सन आपका यहाँ पे भी काम करेगा, वहां पे भी काम करेगा, नहीं वैसा नहीं होगा. ओके. व्हाट आर द कंस्ट्रेंट. अब कंस्ट्रेंट वापस आपके चैलेंजेस आते हैं. क्या क्या चैलेंजेस आप सोच सकते हो जो आपके प्रोजेक्ट में होंगे. डेटा सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट मे इम्पैक्ट द गो लाइव डेट सेट फॉर द प्रोजेक्ट. कुछ ऐसे डेटा सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट है जिससे आपका प्रोजेक्ट का जो गो लाइव डेट है वो हिल सकता है. टाइमलाइन फॉर सिविल अपडेट विल इम्पैक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्टिंग प्लान. जिस वाले सिस्टम पे आपकी डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट अकाउंट ओपनिंग प्रोजेक्ट पे, द सिस्टम ऑन विच यू डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट अकाउंट ओपनिंग प्रोजेक्ट, देयर इज सिविल सिस्टम. इस वाले सिविल सिस्टम का अपडेट प्लान है उसी टाइम पे, तो वो आपका टेस्टिंग प्लान को इम्पैक्ट करेगा. सो दिस कैन बी द कंस्ट्रेंट यू कैन हैव. रिस्क में क्या क्या है आपके. प्रीवियसली अप्रूव प्रोजेक्ट may limit availability of development QA resources. आपके ऑलरेडी पहले से जहाँ पे काम कर रहे हो आप, वहाँ पे you are having limited set of resource, और आप ये बोलना चाहते हो मेरे most of the resources is already occupied दूसरी चीजों में, तो वहाँ पे भी क्या ना some challenges हो सकता है. इसे इसको आप जल्दी से अलग कर दो. Development of online account opening form may affect the timeline set for the bank website renovation project. आप सबको पता है कि जो आपकी बैंकिंग की वेबसाइट्स होते हैं वो रिनोवेट होते रहते हैं, उसमें कुछ अपडेट्स आते रहते हैं. तो जो आपका डेवलपमेंट का टाइमलाइन है या फिर जो आपका लाइव का टाइमलाइन है, वही टाइमलाइन में आपका बैंक का रिनोवेशन भी हो रहा है वेबसाइट का, तो वो दोनों क्लैश हो सकते हैं. तो ट्राई टू मेक श्योर कि आप ऐसा अपना प्लान करो कि पहले बैंक का वेबसाइट रिनोवेट हो जाए एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू डिलीवर योर प्रोजेक्ट का लिंक. तो दीज आर द सिस्टम पर्सपेक्टिव, assumptions, constraint and risk. Understood, Nancy, Subhas, Venkat? Yes, sir. Venkat, Subhas, understood? यस सर, थोड़ा थोड़ा भी अंडरस्टूड सर. एक बार रिवाइज करेंगे एक बार. हाँ ठीक है. इतना में समझ लो आप लोग. सिस्टम पर्सपेक्टिव में जो आपका होता है, मोस्टली यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन कि क्या क्या आपके चैलेंजेस आ सकते हैं, ब्लॉकर्स क्या क्या हैं. assumptions में यू आर गोइंग टू राइट व्हाट ऑल थिंग्स यू आर अज्यूमिंग. कंस्ट्रेंट एंड रिस्क में ऑल्सो यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर चैलेंजेस वी कैन हैव. तो इन सब चीज़ में मैंने आपको बताया, assumption अगर छोड़ दोगे ना तो कंस्ट्रेंट, रिस्क एंड योर सिस्टम पर्सपेक्टिव विल लुक लाइक सेम ओनली. ठीक है वेंकट, Nancy, निकाल के भेज. यस सर. Yes, Yes, sir. sir. the next content is the business process overview. The next content of the ERD is your business process overview. Okay, Nancy, can you please read this? Yes, sir. Business process overview describe how the current processes work, including the interactions between systems and various business units. Include visual process flow diagrams to further illustrate the processes the new product will replace or enhance. Use case documentation and accompanying activity or processes. Flow diagram can be used to create the descriptions of the proposed or to be processes. Thank you so much, Nancy. So in the business process overview, we are going to describe how the current process is and how the to be process. अभी मेरा प्रोसेस कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ, एंड मेरा प्रोसेस जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो कैसे काम करेगा. एग्जाम्पल, इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ 1 मिनट अकाउंट ओपनिंग. अगर मैं 1 मिनट अकाउंट ओपनिंग का करंट प्रोसेस की बात करता हूँ, तो करंट प्रोसेस क्या है. इफ कस्टमर वांट टू ओपन his or her account, they will go to the branch. Branch people will greet them. Then they will give the form to them. They will fill the form. They will submit the form. Then after verification and all, account will get open. So this is the current process. So business process overview, you are having the current business process as this process. So what you are going to define as a part of as this process,
इज योर करेंट बिजनेस प्रोसेस। आपका बिजनेस अभी कैसे चलता है उसका एक सेक्शन होता है। नाउ टू डिस्क्राइब दिस, अगर आपको इसको डिस्क्राइब करना रहता है तो टू डिस्क्राइब दिस यू कैन यूज मल्टीपल सेट ऑफ डायग्राम। आप बहुत सारे डायग्राम बनाते हो, ओके। यू कैन मेक अ फ्लो डायग्राम, यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट डायग्राम, यूएल डायग्राम। तो डायग्राम आप बनाते हो, इसका वी आर हैविंग अ सेपरेट क्लास फॉर दैट थिंग। For creating this type of process flow, we are using some kind of symbol in the diagram. These diagram are called UML diagram. ठीक है, UML diagram जो है हम बनाते हैं तो शोकेस द प्रोसेस। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, राइट। अच्छा मुझे बताओ आप नैन्सी, इफ यू वांट टू हैव समथिंग लाइक, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको मैं 3 पेज का डॉक्यूमेंटेशन दूँ, इसको आपको पढ़ना है और समझना है, या मैं आपको 1 पेज का डायग्राम दूँ जिससे आपको प्रोसेस फ्लो समझना है, विच वन विल बी इजी फॉर यू? Sir, the diagram one. Why? अजय, क्यों? Sir, diagram वाला। अजय क्यों ऐसा? सर इतना सारा पढ़ने में टाइम एनर्जी और फोकस रिक्वायर्ड रहेगा, बट डायग्राम में इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है, बिकॉज फ्लो चार्ट में आप जो प्रोसेस है उसको आप इजीली देख पाते हैं कि कैसे चल रहा है, और क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो उसी में मेंशन हो जाता है। तो आपको उसके लिए पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। Okay. Now, uh, correct. This is right. Another way to answer this. Have you seen Three Idiots? यस सर। एग्जाम्पल आप समझो कि आपने उसकी बुक भी पढ़ी होती। एग्जाम्पल आपने उसकी बुक भी पढ़ी, आपने मूवी भी देखी है। आपको क्या लगता यस है, सर। आपको मूवी ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हो या फिर बुक? रिलेट मतलब याद रहेगी जो लॉन्ग लेट तक जो याद रहती है, क्या याद रहेगा सर आपको? मूवी, क्यों? पिक्चराइजेशन, करेक्ट, विजुअल्स। विजुअल। जो हमें दिखता है उसका विजुअल हमारे अंदर छप जाता है, छप जाता है, इससे हमको ज्यादा समय तक याद रख पाते हैं। इन द सिमिलर यस वे सर। व्हेनेवर वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द डायग्राम, डायग्राम हमें दिखते हैं, राइट। जिस तरह से वी आर गोइंग टू एनालाइज विजुलाइज करते थे, एक आदमी ऐसे जाएगा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस करेगा एंड ऑल, राइट। तो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टेक्स हेल्प फ्रॉम सम काइंड ऑफ डायग्राम, तो डायग्राम हेल्प अस टू विजुलाइज द थिंग। हम जितने अच्छे से चीजों को विजुलाइज कर पाते हैं उतनी अच्छी अच्छी चीजें हमको याद रह जाती हैं। That's why for describing the process, diagrams are very helpful to understand the current process in the 2B process. Now, what is the 2B process? In 2B process, we are going to define after implementation of the project. जब मेरा ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, how my application will look like. प्रपोज प्रोसेस में आपका ये आता है कि आपका प्रोजेक्ट बनने के बाद आपका प्रोसेस कैसा रहेगा। नाउ व्हाट यू विल डू, जब आपका अकाउंट ओपनिंग हो गया, ठीक है, मीन्स इफ यू वांट टू ओपन द अकाउंट विद द बैंक, व्हाट यू विल डू, यू विल प्रोसीड टू ब्रांच। बट आफ्टर हैविंग दिस प्रोसेस ऑफ 1 मिनट अकाउंट ओपनिंग, आपका प्रोजेक्ट लाइव हो गया, बैंक की वेबसाइट पे लिंक अवेलेबल हो गई, व्हाट विल यू डू? इफ यू वांट टू ओपन द अकाउंट, आप बैंक की वेबसाइट लिंक पे जाओ और आपका जो प्रोसेस है वो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप ऑलरेडी 50-60% काम पहले से कर चुके हो। द डिटेल फिल ऑफ योर पर्सनल एंड ऑल वो आपने पहले से कर चुका है। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोसेस को दिखाना है। टू शोकेस दिस डिफरेंट प्रोसेस, अगेन यू विल यूज द सेट ऑफ डायग्राम, और इस वाले डायग्राम को आप दिखाओगे प्रोसेस, प्रपोज प्रोसेस में। सो इन योर बिजनेस प्रोसेस ओवरव्यू 2 सेक्शन होते हैं गाइस। करेंट बिजनेस प्रोसेस, यहाँ पे आपका अभी का बिजनेस प्रोसेस आता है, एंड 2B बिजनेस प्रोसेस। इन 2B बिजनेस प्रोसेस वी आर गोइंग टू डिफाइन what your project will look like after implementation of the project. Understood, Nancy, Venkat, यस सर। Subhas? Business process overview. यस सर, यस सर। Venkat? Yes, sir. Okay. Now your next section is the requirement section. Okay. So this is your requirement section, guys. In the requirement section, you are going to categorize your requirement. Okay.
means its requirement are critical. You will define your requirement is critical, it is high, medium, low, and future. Now, you guys are going to tell me one critical requirement, one high requirement, and one low requirement. What is the definition of requirement? Guys, again, I'm repeating. Please give 100% focus here. We are coming under the section called business requirement. In the business requirement, guys, we are going to document our requirement. ये मेन सेक्शन है जहां पे हमें क्या बनाना है ये डिफाइन करना है. बिफोर डिफाइनिंग इट कि क्या बनाना है, वी नीड टू गिव द प्रायोरिटी या क्रिटिकलिटी आप बोल सकते हो, कौन कितना इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए वी आर हैविंग दिस चार्ट. इस चार्ट में इफ यू सी वी आर गिविंग द इन फर्स्ट कॉलम वी आर हैविंग वैल्यू, सेकंड कॉलम रेटिंग, थर्ड कॉलम इज द डिस्क्रिप्शन. In the value, you are going to give value like 1, 2, 3, 4, 5. And then rating कैसे दे रहे हैं आप? Critical, high, medium, low and future. First one is a critical. This requirement is critical to success of the project. The project will not possible without this requirement. आप कुछ भी कर लो, एक requirement बहुत important है, इसके बिना आपका प्रोजेक्ट चल ही नहीं सकता है. We are giving value at 1. High requirement is high priority. बहुत important है requirement. But प्रोजेक्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट दिस रिक्वायरमेंट. हो सकता है बट करना नहीं चाहिए, बट हो सकता है. मीडियम रिक्वायरमेंट इज समवॉट इंपॉर्टेंट. रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट तो है बट इट इज पॉसिबल बिकॉज इट प्रोवाइड द वैल्यू, बट इट इज पॉसिबल कि प्रोजेक्ट्स के बिना चल सकता है. लो द रिक्वायरमेंट इज लो, इट इज नाइस टू हैव अगर पैसा और टाइम इट्स कॉस्ट एंड टाइम इज अलाउड. Future, this requirement is part of the future requirement, means this part of the out of scope as of now. Now, I want you to tell me, Subhas, one critical requirement of your Axis Bank mobile application. Critical, the fund transfer. Fund transfer is your critical requirement. Yes. Okay. अच्छा, now Yes, सोम बाजार. हाँ जी, चलिए चलो भैया. हो गया. कहाँ चल रहा है सुभाष? अरे नो तो सॉरी, अभी टोटो बैठ रहा हूँ. सॉरी, घर पहुंचे सर, बस रास्ते में अभी. अच्छा, बैठे हो किसी के साथ? नहीं नहीं, एंजॉय एंजॉय. टोटो में बैठे नहीं, टोटो में बैठे सर. नहीं टोटो में बैठे सर, अब घर को पहुंच गए. ठीक है ठीक है ठीक है. ओके ठीक है. द रिक्वायरमेंट दैट सुभाष वाज टेलिंग, क्रिटिकल रिक्वायरमेंट का एग्जांपल सुभाष ने दिया, दैट इज अ फंड ट्रांसफर. एक्चुअली दिस इज अ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट. सच में क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपका प्रोजेक्ट जब आप काम करते हो एज अ बिजनेस एनालिस्ट, एक्सिस बैंक मोबाइल बैंक की एप्लीकेशन है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो होनी चाहिए. बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर एक बेसिक है जो कि होना ही चाहिए. उसके बिना आपका प्रोजेक्ट बनाने का मतलब ही नहीं है. Critical requirement, very good. There is a one critical requirement that I am going to tell you guys is a login page and the sign up option. It is very critical requirement. Why? Because अगर आप login ही नहीं कर पाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. If you not do the login, you will not able to do any of the things. If you want to do any activity, first you need to do the login into the application and then you will proceed further. Then you can do any of the transactions and all. Now, Nancy, can you please tell me one example of high requirement? Yes, sir. सर स्टेटमेंट्स भी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट में ही आ जाएगा सर शायद. हाँ, करेक्ट. स्टेटमेंट भी ऐसा रिक्वायरमेंट है जो कि होना चाहिए. मतलब आप कितना yes, sir. जो आपने किसी को पैसे भेजे, पैसे कहीं से आए, दैट इज इम्पोर्टेंट. एक्चुअली क्रिटिकल ही है ये भी. Yes, sir. मुझे या तो हम उसमें कोई पर्टिकुलर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स इनका जो नहीं भी हो तो चल जाए वैसे ऐड कर सकते. नैन्सी जी, Yes, माय sir. क्वेश्चन इज रिक्वायरमेंट. एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा हूं मैं आपसे.
टेल मी वन हाई सर मैं खुद रिक्वायरमेंट। ही सोचने लग गई थी, आपको नहीं बता रही थी मैं, ओह सो सॉरी। माय बैड, मैं चुप हो जाता हूँ। तो सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ। अच्छा, जैसे केबीसी में होता है नैन्सी ना, कि आप आंसर नहीं दे रहे हो, यू जस्ट डिस्कसिंग, अपने मन में सोच रहे हो, राइट? वैसा। जी जी जी, सॉरी, यस सर। मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। ठीक है, बताइए। आप सोचिए आराम कोई से। बात नहीं सर। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डाल सकते हैं। Yes, we can have the investment option where the requirement is high priority, होना तो चाहिए, but project can be done bare minimum without this requirement as well. Very यस good, सर। very good. Venkat, one medium requirement, sir. वेंकट, नॉमिनी ऑप्शन। क्या बात है वेंकट, क्या बात है, वेरी गुड। द रिक्वायरमेंट इज आई शुड हैव ऑप्शन इन माय मोबाइल बैंकिंग सो दैट आई कैन ऐड द नॉमिनी। वेरी गुड, वेरी गुड। इंपॉर्टेंट तो है, नॉमिनी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू है, बट ठीक है, project can be done without this also as well. Low priority, Subhas. हाँ सर, राइट नाउ जैसे कि बैंक में ऑप्शन आ रहा है यूपीआई ऑप्शन का, यूपीआई ऑप्शन इज या लो चैटबॉट। प्रायोरिटी, नाइस टू है। यूपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है नाइस आज टू की है, डेट लाइक पे। अभी नया नया फीचर निकल रहा है, नहीं या तो नहीं, यूपीआई चैटबॉट। बहुत समय से। चैटबॉट, चैटबॉट इज यस। नाइस टू है, अगर बहुत अच्छी फीचर है। आप अपनी लाइफ कठिन बना दी नैन्सी जी की। इनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने आया था, यही वाला मैं। चलो, नाइस टू है फंक्शनैलिटी, अगर चैटबॉट है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका टाइम कॉस्ट अलाउ करता है, दैट शुड बी वेरी गुड रिक्वायरमेंट दैट वी शुड हैव। नैन्सी, राइट आंसर सुभाष एंड वेंकट एंड नैन्सी अभी तक। फ्यूचर रिक्वायरमेंट नैन्सी। सर फ्यूचर रिक्वायरमेंट में हम कॉन्टेक्ट आरएम वाला रख सकते हैं, अगर चैटबॉट नहीं रख सकते तो। क्योंकि कॉन्टेक्ट आजकल, आरएम। हाँ क्योंकि आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस में कुछ आपके ऐसा जो, बताओ कि मजा आ जाए नैन्सी। कॉन्टेक्ट आरएम इज वेरी लो में जाएगा ये। फिर फ्यूचर में बिल पेमेंट ऑप्शन भी ठीक बहुत लग बढ़िया, क्या जाएगा। बात है। सॉरी यार, मैं फिर टच कर रहा हूँ, लो। क्या सर? नहीं, आप भी अपने बात करो, मैं भी अपने बात कर रहा था नैन्सी जी। आप भी सोचो, मैं भी सर सोच रहा हूँ जी। प्रमोशंस प्रमोशन या इफ यू फील ना। रिकमेंडेशंस। नहीं, मुझे एक्सप्लेन करो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन? सर जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, तो उसमें उस बैंक के एफडी रेट्स का प्रमोशंस आता है या रिकमेंडेशन आता है, या हो आपको कोई सकता है। प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड या ऐसा कुछ है, तो वो हम फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। अभी आता है क्या? अरे आता है सर, अभी तो सब में आता है, ये तो बहुत फ्यूचर कैसे इम्पोर्टेंट हो हुआ गया ये? है। तो फ्यूचर कैसे हुआ मैम ये? हाँ, वेंकट, एक और सुभाष। हाँ, हाँ, एक और ऑप्शन है। हम ना, मेरा पास कैनरा बैंक एप्लीकेशन है, उसमें वेदर रिपोर्ट का भी ऑप्शन है, वो अरे उधर करेंगे। सर क्या ये बात तो है। वन वन व्यू वाला हो गया ना, वन व्यू वाला। नहीं, वेदर वन, मतलब मौसम की जानकारी। हाँ, अच्छा वेदर। वेदर का भी है। बैंक एप्लीकेशन, अरे सर मैं बता रही हूँ ना आपको, फ्यूचर वाला ये वन व्यू वाला कर सकते हो आप। क्या बनने वाला? वन व्यू स्टेट। वन व्यू स्टेटमेंट। यस सर, मतलब दिस इज वेरी सभी दूसरी, इंपॉर्टेंट डियर, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, वन नहीं व्यू, नहीं सर वो आप वाला, समझे, करेक्ट। वन हाँ जी, व्यू हाँ जी, हाँ जी। स्टेटमेंट जो आपको दूसरे अकाउंट्स भी है बैंक, दूसरी बैंक्स के साथ, उसका भी आपको बैलेंस दिखा सके। ये हाँ, वेरी गुड। फ्यूचरिस्टिक है थोड़ा। यस 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 यस, तो मुझे दोनों आपका आंसर अच्छे लगे। वेंकट का आंसर इज आउट ऑफ स्कोप, आउट ऑफ स्कोप, आउट ऑफ स्कोप, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। बैंकिंग के एप्लीकेशन में देयर इज नो नीड ऑफ हैविंग द वेदर, कि वेदर कैसा है। बट ठीक है, इट कैन बी ब्रांच फ्यूचर। जाने के लिए। ब्रांच जाना।
इट इज रिलेवेंट एक्चुअली कि ब्रांच जाने के लिए वेदर कैसा है आप देख करके जाओ। नहीं, हाँ एक्चुअली और इसमें भी ना एक किसान सर्विस बोल के एक रहते हैं, उसका अंदर वो रहते हैं किसान सर्विस किसान में क्या सर्विस। करेंगे? मंडी प्राइसेस, वेदर अपडेट, मार्केट प्लेस इंटीग्रेशन, क्रॉप एडवाइजरी, वैल्यू चेन फाइनेंस, वेयर हाउस रिसिप्ट फाइनेंस, शॉर्ट टर्म लोन फॉर फार्मिंग, ये वाला है। वेरी गुड यार, दे आर वेरी एडवांस एक्चुअली। इफ यू सी हम्म, दीज आर वेरी एडवांस। अच्छा नहीं तो सच बताओ, एडवांस फीचर है कि नहीं है ये? सर ये एडवांटेज हमारे तो है। एडवांस बोल रहा हूँ, मतलब बहुत बहुत अच्छी चीज। एडवांस तो है। ये हम प्राइवेट बैंक सोच ही नहीं पा रहा है ये सब चीजें तो। इट्स अ वेरी गुड सर फीचर दे मैंने आर हैविंग। कुछ तो एक व्लॉग देखा था। समवन वाज ट्रेवलिंग इन चाइना and they don't have Google Map the way we are having. They are having some other application for GPS, and that particular application will show you like if there is a traffic break or signal and a particular signal. So it also shows ki how long it will be red and in what time it will get green. So yeah, the technology is getting much more advanced these days. नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, आप बोल रहे हो कि वो रेड। सर जैसे सपोज यू आर आप ट्रेवल कर रहे हो और आगे कोई चौराहा आने वाला है जहां पर सिग्नल होगा, तो आपको उसका इंडिकेशन आपके जो जीपीएस मतलब कार का जो जीपीएस चालू है, मोबाइल का जो जीपीएस चालू है, उसमें आपको दिखा देगा कि यहाँ पर 50 सेकेंड्स का रेड लाइट है। जब तक आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पता है कि आप वहाँ कितनी देर में पहुंचोगे, तो आपको ग्रीन लाइट मिल जाएगा, या ग्रीन लाइट कितनी देर तक चालू है। तो वैसा मैं बहुत बता रही अच्छा है, थी। वेरी गुड फीचर है। यस। बट ये चाइना इज मच मोर एडवांस देन any other country right now करेक्ट करेक्ट in करेक्ट, terms of technology. टेक्नोलॉजी, राइट राइट, दे आर वेरी गुड। करेक्ट। बट देयर इंग्लिश आर वेरी बैड यार। आई एम हैविंग वन क्लाइंट ऑफ, नहीं रिकॉर्डिंग है मैं। चाइनीज इंग्लिश इज नॉट गुड, बहुत ही खराब है। मतलब हम लोग से भी खराब है, आप समझ लो। इंडियन से भी खराब है, तो समझो क्या हाल होगा उनका। वेरी वेरी पुअर इंग्लिश। आई हैव वन क्लाइंट यार, जब बात करता है ना इंग्लिश में, मतलब कैसे पकड़े, मतलब अब यूएस के क्लाइंट दोनों पकड़ लेते हैं कि क्या बोलते हैं, कि वो जल्दी बोलेंगे बट वो बोलते हैं। वो सेंटेंस तो जल्दी फ्रेम सही करते हैं, पर जल्दी बोलते हैं यूएस यूके क्लाइंट। बट हैव यू एवर हर्ड चाइना पीपल स्पीकिंग इंग्लिश जो खराब बोलता है? वेंकट, सुभाष, प्रिंसी। नहीं सर। मैं रिकॉर्ड करूंगा, अच्छा ये बात समझ। I'll record in the phone and then I'll show you guys. They are very good. Okay, so these are the rating that we have given, guys. The next section is the functional requirement. There are two set of requirement in the business requirement section. We are having two requirement. We have two kind of requirement. One is the functional requirement, another is the non-functional requirement. I am just telling the definition today. What is the functional requirement? What are the non-functional requirement? So functional requirement are the set of requirement which are going to define the what feature you are looking. Yeah, it is going to directly define some kind of function that you are going to build. तो जितने भी रिक्वायरमेंट्स हमारे होते हैं, जैसे कोई फंक्शनलिटी बिल्ड होती है, देयर इज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। लाइक अगर मैं एक्सिस बैंक मोबाइल एप्लीकेशन की बात करूं, तो लॉगिन पेज फंक्शनल रिक्वायरमेंट, sign up option, functional requirement, balance inquiry, functional requirement, statement, functional requirement, fixed deposit, recurring deposit, mutual fund, investment option, UPI option. These all are the functional requirement. मतलब कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट जो आपकी किसी फंक्शनैलिटी को दिखाता हो, दैट विल कॉल द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू हैव कि कैसा दिखता है और कैसे डॉक्यूमेंट किया जाता है इसको। तो लेट मी गो टू अवर एग्जांपल। So in 1 minute account opening example, you are having this. ये थोड़ा सा ये जूम ज्यादा हो गया है। तो नो कैसे जूम हुआ है?
लेट मी गो टू देखते हैं क्या क्या सेक्शन है। सबसे पहले आप प्रायोरिटी है गाइस। ओके, इफ यू सी वी आर हैविंग प्रायोरिटी, जो कि थोड़ा छोटा दिख रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो कैसे, बट प्रायोरिटी है। लेट मी शोकेस इन दिस डॉक्यूमेंट। सो दिस इज अ प्रायोरिटी। ओके, then we can have description, requirement, we can require number as well. So require number F R means function requirement, G is a general requirement, 001. ओके, जनरल रिक्वायरमेंट आपके इन जनरल जितने रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो आपके जनरल रिक्वायरमेंट हो गए। देन प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी इज योर क्रिटिकलिटी, जो हमने अभी तक डिस्कस की थी फॉर IML एप्लीकेशन। इसकी प्रायोरिटी क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। दिस इज द प्रायोरिटी दैट वी हैव डिसाइडेड। Then description. You are going to describe the detail of the project. Yeah, detail of the requirement. My bad. The detail of the requirement. And then you are having rational use cases and impacted holders. का कोई जरूरत नहीं है. Okay. You can just focus on requirement, priority, and the description. If required, impacted stakeholder थोड़ा देखोगे तो ठीक है। मतलब इस वाले required से कौन कौन से stakeholder impacted है। Sometime guys, when you are going to document any of the requirement, आपका requirement ये सब कुछ नहीं रहेगा, केवल आपका वन लाइन में रिक्वायरमेंट लिख करके आ जाएगा। ओके, नाउ लेट मी शो यू वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर गवर्नमेंट अकाउंट ओपनिंग BRD। So a secure online application form shall be developed containing all mandatory fields a customer must fill in order to open account at Bank Al Etihad। ये आपका एक रिक्वायरमेंट हो गया। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या बोलता है? चेक बॉक्स शुड बी अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द यूजर टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट और सर्विसेज ही विशेष टू है विथ हिज अकाउंट। मतलब आप चेक बॉक्स को ऑप्शन दोगे, वहां उसको ई स्टेटमेंट चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए है, SMS अलर्ट चाहिए, उसको दिख जाएगा। दिस इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट। A notification email shall be sent to the customer personal email address once he or she finishes the first page of the account opening application. Customer shall be provided within his email ID with a reference number that shall be used in order to continue filling the remainder field of the online account opening form। मतलब ये आप रिक्वायरमेंट को डिस्क्राइब करते जा रहे हैं। A percentage indicator must appear at the top of the each page of the account opening online application form reflecting the progress of the account opening completion। आपका परसेंटेज दिखना चाहिए कि 10% हो गया, 50% हो गया, 7% हो गया। So what we are going to discuss? So these are the set of general requirement. ये general requirement can we write in terms of user story, Nancy? Can we write in this format? Yes, sir, you can write in the format of user story as well. लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. हाँ, नहीं लिखना है। लिख सकते हैं, कर तो कुछ भी सकते हैं नंदी जी, पर लिखना नहीं। We do not need to write Okay. रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ यूजर स्टोरी। अगर आप देखोगे, मैंने आपको जो एग्जांपल दिए, जितने भी 3-4 एग्जांपल मैंने आपको दिए, कहीं भी आपको यूजर स्टोरी मिला नैन्सी जी? नहीं सर। है ना, प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लिखना है। दिस वाज माय पर्पस टू टेलिंग यू स्पेशली यू डू नॉट नीड टू राइट योर रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ यूजर स्टोरी इन BRD। जैसे एक और रिक्वायरमेंट देखिए क्या है? द ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट नॉट अलाउ अ यूजर टू सक्सेसफुली सबमिट द फॉर्म विदाउट रीडिंग एंड एक्सेप्टिंग द अकाउंट ओपनिंग टर्म एंड कंडीशन। एक चेक बॉक्स होता है, उस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। मतलब दीज आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये कभी यूजर स्टोरी के टर्मिनोलॉजीज में नहीं होता है। ओके, देन ये हो गया आपके जनरल रिक्वायरमेंट। आफ्टर द जनरल रिक्वायरमेंट यू आर हैविंग द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। व्हाट आर द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट? सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट आर द काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट दैट विल हैव रिलेशनशिप विद द सिक्योरिटी ऑफ द एप्लीकेशन। ऐसे रिक्वायरमेंट जिनका रिलेशन आपके सिक्योरिटी से है, वो आपके सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होंगे। वेंकट, कैन यू प्लीज टेल मी वन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट फॉर एक्सिस बैंक मोबाइल बैंक एप्लीकेशन? वेंकट, Mobile number should be 10 digits. सॉरी, Security requirement. हाँ, you tell me one security requirement for Axis Bank mobile banking application. वही तो
ये क्या हम लोग साइन अप पेज में है ना? नहीं, my question is you are having Axis Bank का application, right? वहाँ पे you have multiple requirement. So give me one requirement which will represent the security requirement. What are the security requirement? The requirement which are going to tell you about the security features of your application. लॉग इन विथ डेबिट कार्ड, विदाउट डेबिट कार्ड हम लोग साइन अप नहीं कर सकते। You are saying if you want to log in your account, you need to write, you need to have the debit card of detail available with you. ऐसा होता है क्या वेंकट? जब भी आपको लॉगिन करना आपको डेबिट कार्ड डिटेल मांगता है वो? नहीं, जब अकाउंट रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में ना डेबिट कार्ड मस्ट चाहिए। हाँ, for registration, right? For signing up for one first time. Correct. ओके, Yes. पर लॉग इन का टाइम में दैट पिन एम पिन इज रिक्वायर्ड। Correct. MPIN is required for login your application. Very good, Venkat. Nancy, Yes, sir. requirement for security requirement. सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट में जो वैसे तो जो बेसिक बताया एमपिन एंड एवरी टाइम जब भी आप लॉग इन करो तो आपको एमपिन डालना है। दूसरा सर, जब भी आप कोई पेमेंट कर रहे हो तब भी आपको ओटीपी वेरीफाई करने का ऑप्शन आता है, तो वो भी होना चाहिए। फिर से बताइए। सर, जो भी आप पेमेंट इनिशिएट कर रहे हो मोबाइल हाँ। एप्लीकेशन के थ्रू, तो उसको भी सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन या फिर एमपिन के थ्रू ही वो कर पाएगा। एंड मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन करोगे सब में ओटीपी तो रिक्वायर्ड हो। और उसके अलावा भी सर सिक्योरिटी में सिक्योरिटी में सर जैसे कोई आपको सर्विस रिगार्डिंग भी आपको चेंजेस करना है तो उसके लिए भी आपका वेरिफिकेशन होता है, जैसे ईमेल ओटीपी या फिर मोबाइल नंबर ओटीपी, बिकॉज नॉट एवरीवन इज हैविंग द राइट टू मेक चेंजेस इन द अकाउंट। Understood. So OTP verification, right? यस सर। Okay. एक मिनट से। Another requirement, let me tell you guys. पहला है आपका, मान के चलिए कि इफ यू वांट टू, हाँ, ओटीपी इज एग्जैक्टली राइट जो आपने बोला। इस इफ यू वांट टू डू लॉग इन, ओटीपी रिक्वायर्ड, डेबिट कार्ड रिक्वायर्ड। अनदर सिक्योरिटी फीचर, इफ यू आर लॉग इन विथ रॉन्ग ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फॉर मोर देन ट्वाइस द प्राइस, योर एप्लीकेशन शुड ब्लॉक, राइट? आईडी ब्लॉक हो जानी चाहिए आपकी, फिर उसको अनब्लॉक करते यस बैठो सर। आप, है यस ना? सर। राइट। हाँ सर। उसके सुभाष एक बताइए। सर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट जी। सिक्योरिटी सर, सिक्योरिटी क्वेश्चंस आते हैं सर। Yes, Security ये बहुत questions है। important है, security question. Very nice. So when you are signing up very first time in the application, they will ask the security question that you need to answer. What is your, you can say, व्हाट इज योर pet बर्थडे, name? व्हाट इज बर्थ सिटी, हाँ हाँ, पेट जी, नेम। ये सब आपसे पूछेंगे। अगर इनकेस अगर आप कुछ गलती करते हो या आपको वापस पासवर्ड आईडी बनाना है, then they will ask this set of question. Very nice. So this all will come as a part of your security requirement. From tomorrow we are going to discuss on the next set of requirement. Any question you guys are having, you can ask. Venkat, Nancy, and Subhas. यस सर। Guys, we are going to have test on next week. I'll tell you the date. Mostly on Tuesday we are going to have test. Okay. Expectation on the test will be whatever things we have learned as of now. DRD हमारा कल हो जाएगा. So when whatever things we have learned as of now, that I'm going to take test from you. It will be the live video camera on test where I will ask you the set of questions. Mostly it will be on Monday. Monday रखते हैं.
आपके पास टाइम भी है पढ़ने का, 3 दिन पहले बता रहा हूँ मैं आपको, एक्चुअली 4 दिन पहले बता रहा हूँ। तो हाँ ठीक है, 3 दिन हुआ ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन पहले बता रहा हूँ मैं आपको। इवन मंडे ऑल्सो वी आर हैविंग, 4 days वी आर हैविंग, राइट? सो मंडे मॉर्निंग, नहीं नहीं, मंडे इवनिंग वी आर गोइंग टू हैव टेस्ट, राइट? तो आप सबका कैमरा ऑन रहेगा, एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क द सेट ऑफ क्वेश्चन, whatever understanding we had as of now. Hope you are comfortable with it, Nancy. Yes, sir. Comfortable? Yes, sir. Okay. Subhas, comfortable? यस सर, यस सर। Okay. Venkat, comfortable? Yes, sir. Done. ठीक है. And what I will, when Venkat will give the answer, I'll say very good, Venkat. Mind blowing. Awesome. Okay, Venkat? Because I'm expecting your mock will be very good, Venkat. My expectation is correct? Okay, done. Same expectation from Subhas and Nancy. Yes. Okay. I want you to give your mock very good. Yes, sir. ठीक है. Thank you so much all for the session. Have a great day ahead. Thank you. Thank you. Bye. Bye, sir. Good. All right.